banamuita kumpani c'est parce que alizala banaume bamingi ndio banamuita kumpani. Sasa nilikuwaje Abu Fadl Abbas iko nafasi gani Ahlul Bayt au nyumba ya Mtume? Abu Fadl Abbas iko nafasi gani? Abu Fadl Abbas ni mtu mnene sana kwa nyumba ya Mtume. Kristo Mtume anamtaka sana. Mtume anataka Abu Fadl Abbas sana. Abu Fadl Abbas ni mtu wa heshima sana. Abu Fadl Abbas alikuwa karibu sana na Imam Hussein kila fasi. Ebi Abu Fadl Abbas na ile heshima ni Ahlul Bayt ni sayyidi, lakini ile heshima alikuwa nayo kumbele ya Imam Hussein, wallahi ilikuwa heshima kubwa. Ayazi kumutabaka Sayyidi Hussein. Ye Abu Fadl Abbas wakati ile Bani alipata mimba ya Abu Fadl Abbas, siku moja Mtume anaona nuru iko natoka juu inashuka kwa Imam Ali alayhi salam. Sasa Mtume anaenda kuona Imam Ali, anamuuliza siku ya leo mimi naona nuru mnene sana inashuka nyumba yako. Hapa mambo gani nyumba yako? Ndio yeye Mtume alikuwa shakujua kemuni nyumba batazala mtoto na jina yake itakuwa Abbas, lakini yeye Mtume alipenda baba asikie kwa Imam Ali kule baba yake ya Abu Fadl Abbas. Anamuuliza hapa nyumba yako nini? Ndio Mtume anamuuliza Imam Ali alayhi salam, anamuuliza pana Bani iko na mimba, lakini inshallah tunalomba Mungu atatujalie na mwanaume. Ndio Mtume anamwambia pana yule mwanaume ala asha kuniambia na jina yake itakuwa Abbas. Ni kuzaliwa ya Abbas ni maulidi ya muujiza, ni maulidi moja ilikuwa na dhihaki sana kuzaliwa ya Abbas. Wakati ile kulikuwa malivima sana kuzaliwa ya Abbas. Bani ni Bani alikuwa bibi yake ya Imam Ali. Ni alikuwa mtu mzuri sana. Bani alikuwa mtu alianza kufunga masomo sana. Ni mtu mmoja alianza kufanya mazikri sana kwa Bani. Wakati ile anazala Abu Fadl Abbas na Mtume anabeba mtoto, anamfanyisha adhani na Mtume anaanza kulia. Banamuuliza Mtume, ala unalia nini? Anasema pana, huyu mtoto atakuwa karibu sana na Imam Hussein na yeye atakuwa mmoja pa mimba martir ya Karbala. Yeye Bani ye Abu Fadl Abbas. Sallallahu alaihi wa alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ndio Mtume anasema huyu mtoto misha kuona ile sufasa ataona. Huyu mtoto atakuwa na sufasa sana, ataona sufasa, atakuwa kwa karibu na ndugu yake Hussein, atakuwa Karbala. Ndio Mtume anataka sana Abu Fadl Abbas. Hivi kulikuwa siku moja Zainab alayhi salam, siku moja balitabalia kutafuta mtu gani ataanza kusaidia Zainab mtu gani ataanza kumsaidia wakati ataanza kupanda mashevali wa mapunda, nani ule ataanza kutini ile kamba ya punda ya shevali. Ndio Mtume anaita watoto wake wote, donc c'est-à-dire Imam Hussein, Imam Hassan na bali wote anabambia sasa, est-ce que wewe Hussein utakuwa wewe Imam Hussein alayhi salam utakuwa karibu ya Zainab, ndio utaanza kutembea naye? Ndio nani Abu Fadl Abbas alayhi salam anasema pana, huyu ni sayyidi, huyu ni Maulana Hussein Imam. Kwa msanii hili mtabeba ile charge ya kwanza kutembea na Zainab. Hivi yeye
Abbas anajishusha, anabeba kazi ya kwanza kutembea na nani, na Zainab. Anabeba kazi kubwa sana, anakuja sasa ya vita ya nani, ya Zainab. Donc nani Abu Fath Abbas ni mtu wa heshima sana, ni mtu sisi tufate comportement yake. Alikuwa mtu ya kujishusha sana. Abu Fath Abbas alikuwa ewe sana mambo ya Allah. Abu Fath Abbas ni mtu huyu mtume anataka sana mambo yake yote, na ye alikuwa kufa Karbala. Ye alikuwa shahidi martir ya Karbala. Siku ya leo hii tunakumbuka kuzaliwa kwake. Ndio kuzaliwa kwake kitatuletea sisi nini? Donc tutabeba comportement yake. Alikuwa mtu ya comportement mzuri sana. Abu Fath Abbas alikuwa mtu ya imani. Abu Fath Abbas alikuwa mtu alianza kufanya makazi ya Kiislamu na heshima na ile imani ya dini. Siku za alhamdulillah, siku ya leo tunakumbuka Abu Fath Abbas. Ni nuru ya Allah inatoka juu inashuka hapa chini kwetu watu. Ndio alhamdulillah, ni mambo mzuri sana tukumbuka kuzaliwa ya Abu Fath Abbas. Huyu Abu Fath Abbas alikuwa karibu sana na Imam Hussein. Abu Fath Abbas mama yake ni Bani. Siku zake inshallah alhamdulillah, na siku ya leo tunakumbuka kuzaliwa kwake. Sali ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. अस्सलाम वालेकुम मेरे हजरात। आप हजरात की खिदमत में अपने हजरत अब्बास अबुल फज़ल अब्बास के विलादत के मौके पे तहे दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और पता है तरन्नुम में जुल्म को ज़मीन निकल गई, होंगे गुल फलक के सब दिए जब वो बेनकाब आएगा। एक घर हुसैन का जला, सैकड़ों दिलों में घर बसे। एक घर हुसैन का जला, सैकड़ों दिलों में घर बसे। जिसके पास तख्त ताज था आज बेमकान हो गया। जिसके पास तख्त ताज था आज बेमकान हो गया। आज देता हुआ एहसास उठा लाए हैं, आज देता हुआ एहसास उठा लाए हैं। यानी दरिया से फकत प्यास उठा लाए हैं। नहर के जिस्म को कब से मेरा पूछो इससे तुम नहर की रूह तो अब्बास और इसी के साथ भाई साहब को दावत दी जाती है, तशरीफ लाएं और कलाम पेश करें। आवाज़ बुलंद सलवात।
रात को बहुत बहुत मुबारक हो। मीर अनीस अलैहि रहमत के 2 मिसरों से आगाज़ कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि दो ही जवान देखे हैं इस दो जहान में, दो ही जवान देखे हैं इस दो जहान में, अब्बास करबला में अली नहरवान में, अब्बास करबला में अली नहरवान में। और मौला अब्बास के हवाले से दो शेर गज़ब हैं कि ये शान ये शौकत कोई जीजा न देगा, ये शान ये शौकत कोई जीजा न देगा, अब्बास जो दे देंगे कोई शाह न देगा, अब्बास जो दे देंगे कोई शाह न देगा। और खुद उसने बनाया है इन्हें बाबुल हवाइज, खुद उसने बनाया है इन्हें बाबुल हवाइज, इनसे नहीं मांगोगे तो अल्लाह न देगा, इनसे नहीं मांगोगे तो अल्लाह न देगा। और मौलानी ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, जो मांगा है वो उसका हम मुलाज़ा करें कि ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फ़ज़ाइल ना फ़ज़ीलत ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ये जर्रार ना कर्रार ना खैबर में अलम, ना ये अश्कों की मुसीबत ना शिफा मांगी है, ना ये सूरज ना कमर और ना सितारे मांगे, ना कभी आग ना ठंडक ना जिया मांगी है, ना कभी आग ना ठंडक ना जिया मांगी है, ना कभी नफ्स ही मांगा ना कभी नफ्स ही मांगा, ना शबे हिजरत जा, ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये शम्स का चेहरा ना ये वल्लाइल की जुल्फ, ना यदुल्लाह ना आवाज़ खुदा मांगी है, सुलेमान की हुकूमत ना कुव्वत मांगी, ना अंगूठी ना ये दहलीज़ अता मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी। उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। और फातिमा ज़हरा ने अल्लाह से न मांगा कुछ भी, फातिमा ज़हरा ने अल्लाह से न मांगा कुछ भी, सिर्फ मोहसिन तेरे कातिल की सज़ा मांगी है, सिर्फ मोहसिन तेरे कातिल की सज़ा मांगी है। मुलाज़ा करेंगे कफन कर बोबला का साथ में खाके शिफा लेकर, कफन कर बोबला का साथ में खाके शिफा लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर, अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। और सरे मजलिस में एक दिन सो गया करते हुए गिरिया, सरे मजलिस में एक दिन सो गया करते हुए गिरिया, तबर्रुख ख्वाब में आई जनाबे सैयदा लेकर, तबर्रुख ख्वाब में आई जनाबे सैयदा लेकर। तो मौला अब्बास की विलादत का जश्न और शहज़ादी सकीना का जिक्र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुलाज़ा करेंगे एक है मैदान में एक शाम के जिंदान में, एक है मैदान में एक शाम के जिंदान में, दो कसीदे हैं रबाब गमज़दा की शान में, दो कसीदे हैं रबाब गमज़दा की शान में। हुर्मुला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद, इसलिए खबरें नहीं हैं इनकी कब्रिस्तान में, इसलिए खबरें नहीं हैं इनकी कब्रिस्तान में। तो मुलाज़ा करेंगे अब्बास की मदह में हम सारी रात काटेंगे, अब्बास की मदह में हम सारी रात काटेंगे, जो बदनसब है वही मेरी बात काटेंगे, जो बदनसब है वही मेरी बात काटेंगे। और इमाम वक्त का जब भी ज़हूर होएगा, इमाम वक्त का जब भी ज़हूर होएगा, फिदक के लूटने वालों के हाथ काटेंगे, फिदक के लूटने वालों के हाथ काटेंगे। और तेरा रजब को आपके सुन चुके हैं शायद, लेकिन कुछ उसमें बेबदल करके दोबारा से
कर रहा हूँ। 4 शाबान हो और कोई फैसला न हो, 4 शाबान हो और कोई फैसला न हो, मुमकिन नहीं किसी का मुकद्दर बनाना हो, मुमकिन नहीं किसी का मुकद्दर बनाना हो। ये मेरे मौला को यूं भी समझना मुहाल है, ये वो बयां है जिसका कभी तर्जुमा न हो। और मरहब की माँ ये कहती थी मुमकिन नहीं कभी, मरहब की माँ ये कहती थी मुमकिन नहीं कभी, जो सामने अली के गया हो मरा न हो, जो सामने अली के गया हो मरा न हो। गर चाहते हो माओ की इज्जत बची रहे, गर चाहते हो माओ की इज्जत बची रहे, कोशिश करो अली का कभी सामना ना हो, कोशिश करो अली का कभी सामना ना हो। हमारे सलवात मुनीर साहब चूँकि सदर साहब का हुक्म है 8 बजे महफिल मुलतवी की जाएगी ताकि हाजिरी बढ़ी जाए 8 से 10 तक। तो उससे पहले हमको गुजारिश पे इजाज़त मिली है, तो आप हज़रात के सामने एक मुनाजात पढ़ना चाह रहा हूँ। अब्बास कटे हाथों का एजाज दिखा दो, दिन मेरे पलट दो, मेरी तकदीर बना दो। मैं बेकस मजबूर हूँ, नाचार हूँ आका, मुफलिस हूँ तहे दस्त हूँ, नादार हूँ आका। आलाम मुसाइब में गिरफ्तार हूँ आका, इस वास्ते नुसरत का तलबगार हूँ आका। अब्बास कटे हाथों का एजाज दिखा दो, दिन मेरे पलट दो, मेरी तकदीर बना दो। मुश्किल में गरीबों की मददगार तुम ही हो, हर बेकसबे यार के गमख्वार तुम ही हो। फर्जंद यदुल्लाह हो, मुख्तार तुम ही हो, फौजे शहबे कस के अलमदार तुम ही हो। अल्लाह ने बख्शा है तुम्हें रुतबे आली, मोहताज के दाता हो तो बेकस के हो वाली। तुम बाबुल हवाइज हो, जमाना है सवाली, मैं भी हूँ गदा और है मेरा दामन भी है खाली। अब्बास कटे हाथों का एजाज दिखा दो, दिन मेरे पलट दो, मेरी तकदीर बना दो। हर सिंध से मुझ पर है मुसीबत की चढ़ाई, अपने गम आलाम है खुशियाँ हैं पराई। हर राहत दुनिया ने नजर मुझसे फिराई, दिल देता है रो रो के सकीना की दुहाई। आका शह मजलूम सलाम हज़रात मजलूम की तौबे का सदका, बेचार किए ज़ैनब दिलगीर का सदका। दरबार में गूंजी हुई तकरीर का सदका, बीमार से लिपटी हुई जंजीर का सदका। अब्बास कटे हाथों का एजाज दिखा दो, दिन मेरे पलट दो, मेरी तकदीर बना दो। आका ये रियाज अपना किसे हाल सुनाए, कौन ऐसा है टूटा हुआ दिल जिसको दिखाए। अपने भी नजर आने लगे अब तो पराए, है कौन तुम्हारे सिवा बिगड़ी जो बनाए। अब्बास कटे हाथों का एजाज दिखा दो, दिन मेरे पलट दो, मेरी तकदीर बना दो। अब आपके सामने आ रहे हैं साजिद साहब, और कम से कम कलाम से आप लोगों को नवाजेंगे इंशाअल्लाह। दिलबरे उम्मे बनी दिलबरे जहरा होगा, एक अब्बास की 2 माओं का बेटा होगा। वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, देखने वालों ने सिफीन में देखा होगा। संगे अस्वद की जगह जौन की पेशानी है, होना हो नुसरत
शब्बीर का काबा होगा। हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज ये मियाँ आपके इस्लाम पे होता होगा। इसलिए भीगा शबनम से शहर का दामन, आसमां रात हर शब्बीर को रोया होगा। सल्लल्लाहु अलैहि चादर फातिमा ज़हरा का सितारा अब्बास, जिस पे सूरज पलट आया वो सितारा अब्बास। जब कोई एक वफादार पुकारा अब्बास, आ गए उसकी मदद के लिए 12 अब्बास। बाप 40 हर एक वक्त में मेहमान हुआ, बेटा बेटा हर टूटे हुए दिल का निगहबान हुआ। लबे हैदर की दुआओं का उजाला अब्बास, मरकज़ इस्मत व तत्हीर का पाला अब्बास। ज़ब्र की झील शुजाअत का हिमाला अब्बास, खद शमशीर की हैबत का हवाला अब्बास। गैर में गैर ये शुजाअत का मदीना आ जाए, मलकुल मौत के माथे पे पसीना। गुरबत फातिमा ज़हरा की कमाई अब्बास, फज़ल का बाप है शबीर का भाई अब्बास। कहीं हमजा कहीं जाफर की कमाई अब्बास, करबला वालों 72 की इकाई अब्बास। ये अगर गैर में तलवार चलाने लग जाए, फौज क्या शहर जिब्रील पर ठिकाने लग जाए। अगर शहंशाह अदब उसको इजाजत दे दे, ये अभी जंग का उन्वान कयामत दे दे। मलकुल मौत की खिदमत को ये उसअत दे दे, घाट पे सारे निगहबानों को फुर्सत दे दे। गैर मुमकिन को भी मुमकिन ये बना सकता है, नहर के दोनों किनारों को मिला सकता है। आई आवाज अली है मेरे सानी अब्बास, मेरा बचपन मेरे पापा की जवानी अब्बास। तुझको दोहराना है खैबर की कहानी अब्बास, आज दिखला दे मेरे तेग का पानी अब्बास। गैस के भूख मिटा प्यास का रैला पी जा, बैठी फौजों के समंदर को अकेला पी जा। वारिसे तेग अली ने वो घुमाया नैजा, जुल्फ़िकाराना हुआ बांध के चमका नैजा। पहरेदारों की कज़ा बन गया टूटा नैजा, भागने वालों के होठों पे है नैजा नैजा। लेके जीने की हवस अहले हवस भागते हैं, पाँव पे सर है न सर पाँव पे बस भागते हैं। ये अभी सर पे सितमगारों के मैसर तोड़े, एक शीशे की तरह जुल्म का लश्कर तोड़े। बहते पानी का भरम सख्त सितमगर तोड़े, एक वार में 100 दरे खैबर तोड़े। ये अगर चाहे तो सहरा में समंदर रख दे, आसमानों को जमीनों की जगह पर रख दे। नारे सलवात। दरिया का इलाका खून से भर जाएगा, ठान लेगा जो अली का शेर वो कर जाएगा। हजरत अब्बास का आना ही है ऐलाने मौत, पैरा वैरा छोड़ ये लश्कर अभी मर जाएगा। हुक्म देंगे जिस घड़ी दस्ते खुदा की उंगलियां, होके फूलों से भी हल्का बाब खैबर जाएगा। सर पे आज ऊँटों की कतारों हैं अता के सलवात पर करबला की जंग में 6 माह का असगर भी है, फतह का सेहरा उसी मासूम के सर जाएगा। आज फिर सिफीन में उल्टेंगे खैबर के वरक, हाँ ये सच्चाई है बेटा बाप पर ही जाएगा। वो अली का वार ये शेर अली का वार है।
सर पे आएगा तो फिर जिब्रील का पर उठ जाएगा। फॉर्मूला ने ख्वाब में ये भी कभी सोचा न था, इतना शरकत तीर एक बेशीर से डर जाएगा। काबाए करबो वाला में जौन भी है हुर भी है, संग अस्वद साथ लेकर संग मरमर जाएगा। इस अबू तालिब के घर में सब मोहम्मद और हैं सब अली, नैज़े पे असगर भी अकबर के बराबर जाएगा। सलवात करना। जब मुहर्रम के जुलूसों पर नजर जाती है, जब मुहर्रम के जुलूसों पर नजर जाती है, कौन सी टीस है जो दिल में उभर जाती है, कौन सी टीस है जो दिल में उभर जाती है। और हाथ काटे थे अलमदार के जिन लोगों ने, हाथ काटे थे अलमदार के जिन लोगों ने, उनकी औलाद अलम देख के डर जा। अलम देख के डर जाती है। सवाल का सारा जरा के पसीने से बने जैसे पयंबर, अहमद के पसीने से बने जैसे पयंबर, गाजी के पसीने से वफादार बने हैं, गाजी के पसीने से वफादार बने हैं, गाजी के पसीने से बने जैसे वफादार, गाजी के पसीने से बने जैसे वफादार, आबिद के पसीने से आजादार के पसीने से आजादार बने हैं। सलवात का साथ अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है, परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है। अब्बास निकल आए हैं मशकीज़ को भर कर, अब्बास निकल आए हैं मशकीज़ को भर कर, अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह, अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है। सवाल का सारा
मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर अली कहते हैं। दस्त हैदर का तराशीदा नगीना मैं हूँ, मैं गिले सब्र शुजाअत का करीना मैं हूँ। नूह को नाज है जिस पर वो सफीना मैं हूँ। हाँ मुझे फख्र है साकाए सकीना मैं हूँ। हाँ मुझे फख्र है साकाए सकीना मैं हूँ। मर्ज़ी रब के खरीदार का एहसास हूँ मैं, मुझको पहचान लो अब्बास हूँ। अब्बास मुझे शेर अली कहते हैं। गैज़ में आऊं तो दुनिया को हिला सकता हूँ। खुद में तुझे पानी पिला सकता हूँ। मुर्दा उम्मीद को ठोकर से जिला सकता हूँ। नहर को काट के खेमे से मिला सकता हूँ। तुम्हें आगा का मैं पाबंद हूँ, मजबूर नहीं। मैं अगर चाहूँ तो कोसर भी बहुत दूर है। अब्बास मुझे शेर अली कहते हैं। लाए होते हो तबर किसको डराने के लिए, ये खिलौने तो है असगर को हंसाने के लिए। क्या यहाँ आए हो बेवक्त ही जाने के लिए, कोई तरकीब करो जान बचाने के लिए। हैदरी शान से लूंगा जो अभी अंगड़ाई, तुम ये कहते हुए भागोगे कयामत मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर अली कहते हैं। लड़ने आया नहीं इस वास्ते समझाता हूँ, अपने मकसद को तुम्हें खोल के समझाता हूँ। मश्क भरने के लिए नहर पे मैं जाता हूँ, तुम यही ठहरो अभी लौट के मैं आता हूँ। रास्ता रोकोगे तुम कुछ भी नहीं पाओगे, मैं अगर लैज़ में आया तो किधर जाओ। अब्बास मुझे
फुलाए बैठे हैं। और जब से सुन लिया रन में लड़ने आएंगे हैदर, जब से सुन लिया रन में लड़ने आएंगे हैदर, अरे तब से मरहबो अंतर मुँह फुलाए तब से मरहबो अंतर मुँह फुलाए बैठे हैं। और जब सदाए मन कुंतो गूंज उठी मैदान में, जब सदाए मन कुंतो गूंज उठी मैदान में, लोग कुछ उसे सुनकर मुँह फुलाए हुरमुला के घर वाले जितने हैं जमाने में, हुरमुला के घर वाले जितने हैं जमाने में, अरे जब से हंस दिए असगर अरे जब से हंस दिए असगर मुँह फुलाए बैठे हैं। मश्क भर के दरिया से निकला शेर का हैदर, शिमरो हुरमुला डर कर मुँह फुलाए पूरी आखिरी दो बंद है, थोड़े खास बात फरमाएं। तीन के तो आप लोग जहन में ही है। जब किसी ने पहले से दूसरे को पूछा है, पहला दूसरा तीसरा ध्यान रहे, जो दूसरे साहब को ज्यादा घर में रहते थे। जब किसी ने पहले से दूसरे को पूछा है, अरे बोला तीसरा आकर मुँह फुलाए तीसरा आकर मुँह फुलाए बैठे हैं। खामनाई हक पर है जब ये बोले नसरुल्लाह, खामनाई हक पर है जब ये बोले नसरुल्लाह, तब से दुश्मने रहबर मुँह फुलाए तब से दुश्मने रहबर मुँह फुलाए बैठे हैं। सवाल का सारा जमात की तरफ से लोकल भाइयों और दोस्तों के लिए तोहफे का इंतजाम किया है, उसको देने के लिए आज बुजुर्ग को नहीं बल्कि जवानों को दावत दी जाती है। जनाब ताहिर साहब, जनाब नईम साहब, अबुल साहब, खान मुबीन साहब तशरीफ लाए हमारे